Namaste and a very warm welcome to all of you. Let me now begin by introducing our distinguished guests. Today we have with us Mr. Bharat Sharma from Malti Publications. He is our guest of honor today. भरत शर्मा जी ने आईआईटी दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। वे प्लास्टिक के क्षेत्र में उद्योग चलाते हैं। सामाजिक धार्मिक कार्यों में उनकी विशेष रुचि है। 40 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। अमेरिकी और यूरोपीय विश्वविद्यालयों के इतिहास और वर्तमान का उन्होंने अध्ययन किया है। We have with us Shri Rahul Tiwari ji. He is the author of the book. Shri Rahul Tiwari is a doctoral candidate at the Special Center for National Security Studies at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. He is an experienced researcher with an MPhil degree in herbal and ethnomedicine with an emphasis on the Gond tribes of Chhattisgarh. He is working on the conflict reporting on Western mainstream media with an emphasis on the Russia-Ukraine war. His work has been published in various international journals. He has contributed to various think tanks in the field of national security. His area of interests are media, technology, security, and defense. We have amongst us author and columnist Sri Arun Anandji. He has over 3 decades experience in journalism and at present is a consulting editor with Network 18 Media Group. He has authored over 10 books including Know About RSS and Islamic Radicalization in India. We also have with us as guests in the audience today Chandra Prakash ji. He has worked as a TV journalist with Aaj Tak, NDTV and CNBC, and also Parag Tope ji. He is the descendant of freedom fighter Tatya Tope. He is currently running a software company in the US. He is the writer of the book Operation Red Lotus. I welcome all of you. Now, to felicitate our guests, I would like to call upon stage Professor Brajesh sir to present the memento to Nand Kumar ji. A round of applause. I now request Dr. Gaurav to present the memento to Mr. Bharat Sharma. I request Anisha ji to present the memento to Arun Anand ji. I request Shubh ji to present the memento to Rahul Tiwari ji. Thank you, everyone. Now, before we move on to presenting mementos to our esteemed guests and unveiling the book, I would request the guests to kindly light the lamp और हम माँ सरस्वती की आराधना करेंगे. या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहा
हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। The moment we have all been waiting for is finally upon us, the first official release of the book. I request all the esteemed guests to unveil Puritan movement, UNS universities and their anti-Bharat approach. I would also request Sri Chandra Prakash Tripathi ji and Dr. Lakshman Mehra as well as Dr. Gaurav Tyagi to please join us on the stage. Taking the program further, I would now request the guest of honor, Mr. Bharat Sharma, to deliver his welcome note. Sir. श्री राम। यद्यपि ये पुस्तक का विषय अंग्रेजी में है, पर मैं अपनी बात हिंदी में रखूंगा क्योंकि मैं सोचता हिंदी में हूँ। तो मैं इससे आरंभ करना चाहूँगा कि ये पुस्तक की आवश्यकता क्यों हुई। तो अगर हम चर्च का इतिहास देखें और इनफैक्ट एब्राहमिक रिलीजन्स का इतिहास देखें तो 10,053 में 1053 में चर्च स्प्लिट हुआ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न चर्च के बीच में। तो ईस्टर्न चर्च वो है जिसे हम ऑर्थोडॉक्स चर्च कहते हैं, जो कि सर्बिया, रशिया, बुल्गारिया, ग्रीस इन क्षेत्रों में। और वेस्टर्न चर्च वो जो कैथलिक हुआ और बाद में 1517 में मार्टिन लूथर के रिफॉर्मिस्ट अटेम्प्ट के बाद प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में तो वेस्टर्न चर्च फिर से ऑर्थोडॉक्स और कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में स्प्लिट हो गया। तो यदि हम अपना इतिहास देखें इनका, तो ये सदैव सतत आपस में लड़ते रहे। पांचजन्य ने जब यूक्रेन का युद्ध आरंभ हुआ तो उसको कवर करते हुए एक स्टोरी की थी जिसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि जो वेस्टर्न चर्च है उसका ईस्टर्न चर्च से सदैव युद्ध रहा है। 10,053 में जो वो चर्च स्प्लिट हुआ तो वो जो दो पोप्स हैं, मतलब कैथलिक पोप और ऑर्थोडॉक्स चर्च के पोप, वो जाके 2018 या 19 में जब ये मुस्लिम इमिग्रेशन यूरोप में बड़ा इशू बनने लगा क्रिश्चियंस के लिए, तो तब पहली बार वे मिले। 1000 वर्ष वे नहीं मिले। और केवल यही नहीं, अगर हम जितने भी सिविल वॉर देखें, यूगोस्लाविया स्प्लिट हुआ तो जो सिविल वॉर हुआ, तो अगर हम देखें कि सर्ब्स, क्रोएट्स और जो बॉस्नियक्स लड़ रहे थे, तो द कैथलिक्स एंड द इस्लामिक्स वर टुगेदर फाइटिंग अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स चर्च। अगर हम रशिया टर्की वॉर देखें तो हम देखें टर्की के साथ सदैव कौन रहे? द वेस्टर्न चर्च। अगर हम ऑटोमन एम्पायर की क्रिश्चियन टेरिटरीज को देखें तो जो एक सुन्नी एम्पायर था और उन्होंने इस यूरोप की जो क्रिश्चियन टेरिटरीज थी, तो हम देखते हैं कि भाई ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ तो कभी भी वेस्टर्न लोग नहीं आए। और हाँ, ये ज़रूर हुआ कि वेस्टर्न चर्च में प्रोटेस्टेंट जब लगभग कोलैप्स होने को थे, जो 1483 का सीज ऑफ वियना था, तो उसमें ज़रूर पोप के आह्वान पे पोलिश कैथलिक किंग ने प्रोटेस्टेंट सेना की सहायता की, बट अन्यथा आपस में वे लड़ते रहे। और विशेषकर ऑर्थोडॉक्स चर्च के अगेंस्ट वेस्टर्न चर्च सदैव लड़ा। और उसके बाद जब स्प्लिट हुआ विद इन वेस्टर्न चर्च में, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट में बीच में जब स्प्लिट हुआ, तो वे सतत लड़ते रहे। जो जर्मनी में 30 वर्ष का सिविल वॉर चला 1517 के बाद, उसमें लगभग 1/3 जर्मनी नष्ट की जनसंख्या मार दी गई उस सिविल वॉर में।
जो कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में था, और वो उतना मर्डर, उतनी प्रतिशत जनसंख्या तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी नष्ट नहीं हुई थी. तो जस्ट टू गिव अ कंटेक्स्ट कि दिस हैज ऑलवेज बीन अबाउट माई वे और हाईवे. ये एक अब्राहमिक थॉट है कि भाई हमारा विचार है तो वही विचार हम इसको सदैव चलाएंगे. और इसको जब हम देखते हैं कि अगर यूएस को हम स्टेट देखें तो यूएस को कभी भी हमें यूएस के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तक का जो विषय है वो प्यूरिटन मूवमेंट एंड यूएस यूनिवर्सिटीज है. बट हमें इसको सदैव एज एन एक्सटेंशन ऑफ एंग्लो देखना चाहिए. बिकॉज मतलब वास्ट जब हम कहते हैं वाइट, एंग्लो सैक्सन, प्रोटेस्टेंट, तो ये जो समूह है ये वही ब्रिटेन से वे लोग गए, और या जहाँ कैथलिक मेजॉरिटी कंट्रीज से प्रोटेस्टेंट भागे, प्रोटेस्टेंट मेजॉरिटी से कैथलिक भागे, और उनको लगा भाई एक नया देश है इंग्लैंड और अमेरिका, वहाँ पे हम अपना बसाएंगे. तो उनमें जैसे कि राहुल की पुस्तक में उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में बताया है कि जैसे वर्जीनिया है, आपने बुक में लिखा है, तो वो कैथलिक बहुल था, तो वहाँ प्रोटेस्टेंट कैथलिक लड़ाई चलती रही, और प्यूरिटन मूवमेंट एसेंशियली प्रोटेस्टेंट मूवमेंट रहा. और तो ये जो वैस्प को हम कंटिन्यूम के रूप में देखें, अभी भी हम फाइव आइज का देखते हैं कि जो फाइव आइज का भारत के विरुद्ध आक्रमण है, तो वो यूएस, कौन है फाइव आइज? यूएस है, कनाडा है, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है. तो बेसिकली वाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट समूह है. तो हमें हमेशा इसको एंग्लो यूएस, मतलब ब्रिटेन और यूएस को कभी भी अलग नहीं देखना चाहिए, उन्हें एक कंटिन्यूम में देखना चाहिए. सिर्फ ये हुआ कि विश्व युद्ध 2 के बाद ब्रिटेन से सत्ता एक दूसरे गोरे क्रिश्चियन पे चली गई, इतना ही अंतर हुआ. और मैं मतलब चर्च के रूप में कह रहा हूँ, क्रिश्चियन इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, चर्च एज अ इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूँ. तो अगर हम यूएस के डीप स्टेट का रोल देखते हैं तो मैल्कम ग्लैडवेल की एक बुक है द बॉम्बर माफिया, आप में से पढ़ी है लोगों ने? तो इट इज़ अबाउट कि वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूएस ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, तो एक था कि आप मास बॉम्बिंग कर सकते हो या प्रिसिजन बॉम्बिंग कर सकते हो. तो यू कुड अडॉप्ट वन ऑफ द टू स्ट्रैटेजीज. एंड द यूएस इन जर्मनी ट्राइड टू डू पिन पॉइंटेड बॉम्बिंग, बट इन जापान उन्होंने मास बॉम्बिंग की. जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए 1945 में, तो उसके अगस्त से बहुत पहले सीरीज ऑफ नापाम बॉम्ब्स गिराए गए, मतलब हजारों सॉर्टीज की गई, पैसिफिक से प्लेन उड़ते थे, और वो जो नापाम है, ठीक है, तो वो इंसिडेंटरी बॉम्ब है, मतलब आग एकदम पकड़ता है. वो फॉर्मूला हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में तैयार किया गया. जापान में जिस टाइप के घर होते थे लकड़ी के, उसकी कॉपीज बनाई गई, ये देखने के लिए कि अधिक से अधिक आग कैसे फैले, कैसे अधिक से अधिक लोग मरें. ओके, उन्होंने कहा 1 मिनट, बट ठीक है मैं 5-6 मिनट लूंगा. तो जो पॉइंट ये है कि दिस वाज ऑलवेज द यूएस स्टेट हैज ऑलवेज बीन अ क्रिश्चियन स्टेट. और आज भी अगर हम देखें, तुलसी गबार्ड को बाहरी कर देती है डेमोक्रेटिक पार्टी, विवेक रामास्वामी को रिपब्लिकन बाहर कर देते हैं. तो सीधा फंडा है कि भाई आप जूडियो क्रिश्चियन स्टेट में अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, तो चाहे निकी हेली हो, चाहे बॉबी जिंदल हो, आपको हिंदू छोड़ के क्रिश्चियन बनना पड़ेगा. तो ये है. तो जब तक हम यूएस के डीप स्टेट का जो मूल चरित्र और वित्तीय है, जो एक अब्राहमिक ये जूडियो क्रिश्चियन है, वो नहीं समझेंगे, तब तक हम इस भाव को नहीं समझ पाएंगे कि आ कहाँ से रहा है. तो जो यूनिवर्सिटीज रही वेस्ट की, वो सदैव एज सेमिनरीज रही, मतलब उनका ध्येय था धर्म की शिक्षा, मतलब उनके मजहब की शिक्षा, धर्म नहीं मजहब की शिक्षा. और जब कैम्ब्रिज, जो ब्रिटिश कैम्ब्रिज था, वो मैसेच्यूसेट्स में नया कैम्ब्रिज बना, तो वहाँ पे जो MIT बने या हार्वर्ड बने बॉस्टन में, तो उसमें भी उनकी वही कल्पना थी कि दे स्टार्टेड ए सेमिनरीज. मेरी बेटी यूएस की आईवी लीग की यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, और मुझे बिल्कुल वहाँ जाके चैपल को अंदर से देखने का मौका मिला है विस्तार से. तो वो इट इज़
जो ये हम कहें सेक्युलराइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये तब हुआ जो एक फेज आया पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, जब एक प्रकार से साइंटिफिक या टेक्निकल फोकस अधिक रहा यूनिवर्सिटीज का। उससे पहले का अगर आप फेज देखें, अगर आप जॉन जो सीगल की जो बुक है लव स्टोरी वगैरह, जो 1920s के हार्वर्ड पे सेट है, तो वहां क्या हो रहा है, ज्यूज के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट्स। सो दिस हैज ऑलवेज बीन, मतलब दिस इज नॉट एन एबरेशन, ये कोई नई चीज नहीं है। हम क्या है, हमें कूलेड पिलाया जाता है क्योंकि मीडिया वही कंट्रोल करते हैं। मीडिया के जो 5-6 हैं उनको वो रन वही कर रहे हैं, पीछे से यूएस के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं, तो हम सबको बताया जाता है जी यूएस बड़ा अच्छा है, डेमोक्रेसी है, ये सब कुछ नहीं है। इट्स अ पुलिस स्टेट एंड दे हैव, तो अब मैं आता हूँ यूएस स्टेट एज अ डीप क्रिश्चियन स्टेट। तो जापान बॉम्बिंग का बताया, न्यूक्लियर बॉम्ब का बताया। न्यूक्लियर बॉम्ब वाज नॉट यूज्ड ऑन जर्मनी, इट वाज यूज्ड इन जापान because the Japanese were non-Christians, so they killed millions. और उसके बाद जो डगलस मैकार्थर गए, जो कि यूएस के वॉर जनरल थे, वो वहां पे रहे जापान में, और उन्होंने पूरा जोर लगाया जापान को क्रिश्चियन बनाने का। इनफैक्ट एक बुक है जो पढ़ने लायक है, सोल्जर ऑफ गॉड। तो हाउ डगलस मैकार्थर एक्चुअली ट्राइड टू पुश क्रिश्चियनिटी इन जापान। जापान में वो उतने सफल नहीं हो पाए, पर कोरिया एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कोरिया 1948 में 1% क्रिश्चियन था। मैं कोरोना से जस्ट पहले 2019 या 19 में सियोल गया था, और एक और इंचॉन। तो अगर आप कोरिया को देखते हैं तो आज ऑलमोस्ट 50% क्रिश्चियन है। जो 7 चेबोल्स हैं, लार्ज बिजनेस ग्रुप्स, उनमें से एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, एक भी। ऑल 7 आर क्रिश्चियन, और प्रेसिडेंट्स उनके पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्रिश्चियन रहे हैं। तो आप सियोल में रेलवे स्टेशन से बाहर निकले, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि जी यू आर अ सिनर, क्रिश्चियन बन जाइए। तो ये एक पूरा, एंड दैट्स प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी। अगर हम श्रीलंका का केस देखते हैं, हम वियतनाम का केस देखते हैं, तो वियतनाम का सिविल वॉर क्या था। इनफैक्ट पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 जितनी भी एशिया में कॉलोनीज फ्री हुई, तो लगभग सब में चर्च ने पूरा जोर लगाया उनको अपने नियंत्रण में लेने का। अगर हम पिछले 20 वर्ष में देखें तो 2 देश नए बने हैं। एक है ईस्ट तिमोर जो इंडोनेशिया से टूटा, और एक है साउथ सूडान जो सूडान से टूटा। दोनों केस में हु लेड द मूवमेंट? इट वाज द मिशनरीज। सो इट वाज अ क्रिश्चियन स्टेट दैट ब्रोक आउट फ्रॉम अ मुस्लिम स्टेट। तो अगर हम जब तक पूरे ये जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ रिलीजन नहीं देखेंगे, तो बिकॉज वी आर टॉट नो इट्स सेक्युलर, ऐसा नहीं था, इट वाज ऑयल, या श्योर इट वाज ऑयल, बट इट वाज मोर देन ऑयल। और यही सब 1970s में भारत में हो रहा था। ये जो पूरा द्रविड़ मूवमेंट है, इसके पीछे आज भी हम देखते हैं तमिलनाडु में किस प्रकार से चर्च का रोल रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि कुंदकोलम न्यूक्लियर रिएक्टर के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट थे उसकी फंडिंग नॉर्वे से हो रही थी। श्रीलंका में क्या हो रहा था, जो लोग मर रहे थे, एक तरफ हिंदू एक तरफ बुद्धिस्ट, और ऊपर कौन है? वेल्लुपल्ली प्रभाकरन, एंटन बालासिंघन। हु आर दैट लीडरशिप? हु इज पिछले, आप बताएं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद श्रीलंका के कितने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं जो बुद्धिस्ट बने? क्रिश्चियंस क्यों बन रहे थे भाई? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्या है? आज पंजाब में क्या हो रहा है? जब हम अगर भारत पे आते हैं तो 1857, पराग टोपे यहाँ उपस्थित हैं, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है 1857 के युद्ध पे, ऑपरेशन रेड लोटस, तो उसमें क्या है, 3 स्वतंत्रताओं के लिए हम लड़े। वो 3 कौन सी थी? आर्थिक स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो हम आर्थिक स्वतंत्रता हार गए, हम राजनैतिक स्वतंत्रता हार गए, पर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता उस युद्ध से बचा ले गए, क्योंकि उससे पहले चर्च ने पूरा जोर लगाया यहाँ पे धर्म, अपने मजहब को फैलाने का। और वो जो युद्ध था जिसमें लगभग 1 करोड़ भारतीय मरे, उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि या तो लूट लो या ईसाई बना लो, 2 में से एक होगा, दोनों नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, लूट लेते हैं। और जब 47 के बाद हमें तथाकथित स्वतंत्रता मिली, जैसी भी मिली, तो वरियर ऑलविन करके जो मिशनरी थे, उनका हमें पता है। यहाँ पे मैंने आते हुए देखा रानी गायतमेलू का नाम का जो छात्रावास है, तो वे रानी तो ईसाई नहीं थी, पर आज नागालैंड और मिजोरम में क्या स्थिति है?
आज क्यों राजीव गांधी जाके कहते हैं मिजोरम में कि वील रूल चर्च मिजोरम बाय द बाइबल? क्यों ऐसा है कि अगर संडे को वोटिंग हो जाए तो चर्च प्रोटेस्ट करता है और वो वोटिंग की डेट चेंज करनी पड़ती है? तो ये विचार हमें करना पड़ेगा कि जो भारत की मूल वृत्ति है कि हम एक हिंदू मूल राष्ट्र हैं, हम सनातनी राष्ट्र हैं, तो ये हमें ये जो आक्रमण है हम पे, ये एक यूएस के डीप स्टेट का है और वही उनकी यूनिवर्सिटीज को कर रहा है। जैसे मैंने हार्वर्ड का एग्जाम्पल दिया, तो ये हम सोचें कि बदल गया, नहीं बदला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे यहाँ नक्सल मूवमेंट है, जो अगर हम बोडो आंदोलन की बात लें, ठीक है, तो हमें बताया जाता है जी बोडो आंदोलन है, बहुत बढ़िया है। बोडो आंदोलन के पीछे कौन है? बोडो में एक बहस इस बात पे थी कि बोडो भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी, देवनागरी में या रोमन में। तो उन्होंने, देवनागरी की बात करने वाले हिंदू थे, जो ईसाई थे वो कहते थे रोमन में लिखे जाएंगे। उन्होंने जो हिंदी की बात करता था उन्हें मार दिया। तो ये जो प्यूरिटन या प्रोटेस्टेंट्स जो यूएस के डीप स्टेट को चला रहे हैं, यूएस की यूनिवर्सिटीज को चला रहे हैं, और वही यूनिवर्सिटीज हमारी यूनिवर्सिटीज, मतलब नो ऑफेंस बट जो जेएनयू है, दिस वाज सेट अप बाय फॉरेन हेल्प, और वो लगभग हर बड़ी यूनिवर्सिटी का यही है। जो सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट है, दिस इज अ अब्राहमिक कंसेप्ट, और वहाँ पे दैट इन्फ्लुएंसेस आवर पॉलिटी, आवर ब्यूरोक्रेसी, आवर जुडिशरी, आवर एलिट्स। तो ये जो विषय है, इसको आना आवश्यक है। जो सैकड़ों सो कॉल्ड रिसर्च सेंटर्स चलते हैं अमेरिकन या वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ में, उनका फोकस रहा है हमारे ऊपर। इट इज़ टाइम वी रिवर्स द गेज, हम उन पे देखें वो क्या कर रहे हैं। और उस दृष्टि से राहुल जी की पुस्तक एक बहुत अच्छी मतलब आरंभ है, इसका बहुत स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि जो आज एक बदला हुआ वातावरण है, हमने आते ही देखा इतने भगवा ध्वज लहरा रहे थे, तो और ऐसी पुस्तकें आएंगी और ये विचार फैलेगा, और जो सत्य है वो सत्य बोला जाना चाहिए। तो ये सत्य बोलने के लिए और लोग भी इस पुस्तक से प्रेरित होंगे। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। I would now like to call upon the stage the author, Shri Rahul Tiwari ji, to address the audience. थैंक यू। वैसे मैं बढ़िया ऑरेटर तो नहीं हूँ, बुक लिखने का प्रयास करा है और आगे और सीखने का प्रयास चलता रहेगा। सारा विषय लगभग काफ़ी अच्छे से भारत शर्मा जी ने रख दिया है। मैं बहुत ब्रीफली थोड़ा सा कुछ अपने पॉइंट्स एक बार रखूँगा। Namaste and welcome everyone. I would like to pay homage, simultaneously owe this book to the bravest of brave, Ram Bhakts, who lost their lives in a struggle that started more than 500 years ago. And my ancestors who were displaced from their ancestral village in Devariya and had to wander in and around Awadh, which is basically, you must have heard about Ayodhya, today's Ayodhya, for almost 2 years until they got relocated nearby the banks of Gomti River at Sultanpur. I also dedicate this book to my Mausaji, who just passed away last week due to cancer. And due to the engagement with regard to this book launch, I was not able to attend his last funeral or last rites. To my other family members also, whom I lost in the last 2-3 years, I sincerely bow down to their memories for not being able to spend quality time with them during the last days. Moving forward, since our Honorable Vice Chancellor was not able to come for now, she has told me that she would be coming in an hour. So I would also like to pay my obeisance to Honorable Vice Chancellor Professor Santi Shri Dulpudi Pandit ji, whose leadership has paved the way for academic excellence. Your unwavering commitment to fostering a conducive learning environment has been a source of inspiration for all of us. Next, definitely our senior Sangh Pracharak Shri Nand Kumar ji, National Convener Pragya Prabha,
Shri Arun Anandji, author and columnist, for gracefully accepting the invitation for the book launch. Special thanks to this Special Center for National Security Studies, the chairperson, and my PhD supervisor, Professor Dr. Lakshman Behra sir, under whom the book launch is being organized. I owe a debt of gratitude to my mentors, guides, professors, and obviously the publishers themselves, whose invaluable insights and encouragements have instrumental in shaping the notion of my book. This is probably the first time after the nursery class, I would say, in particular, that my father is attending any program. A round of applause for my father. He is sitting beside me. It's my father. And also the beloved other family members who have come to attend the launch. Conclusively, Professor Brijesh Pandey sir, Ashutosh ji, Vibhag Pracharak, Dr. Shubh Gupta ji, Dr. Saurabh Sharma ji, and the whole Pragya Prabha team, Delhi team, who made this launch possible. Today is 9th February 2024. It was exactly 8 years ago the JNU was in the media for some unwanted slogans. And it is on the same soil that we have gathered today for some positive development. Today's gathering brings into discourse a very crucial argument: the Puritan movement, US universities and their anti-Bharat approach. When the research was basically conducted, I was just roaming around here and there, so I was not able to look around. There were a few questions in my mind that were running in my mind. Basically, I wanted to explore the cause of it, why anti-India activities are being done in the varsities of United States. What is the cause of it? As Bharat Sharma sir has recently said that Gora hai to sahi kahega kya wahi hai kya. So there were a few questions in my mind, and who created these universities? What was the very purpose behind their creation? Why the literature provided, studied, or discussed, regarding Hindus and Bharat in the varsities of the United States always appear to be propaganda tool. What is the source of their funding? What do they cater in response to their funding by various foundations and individuals? The book revolves around all these questions and comprehensively tries to unfold all of them together. There's also a point that also wandered in my mind, that how discussions and lectures in US universities create a negative perception of Bharat and Russia and other East Asian nations. Is it just ideological difference, or is this, or there is something more about it? Well, Bharat Sharma sir has already discussed about the evolution and inception of it, which I have already written in the title of the book, that is the Puritan movement. So I would just go through a very little part of it. I'll just highlight few points, and because I have also pressure to sum up this speech in a matter of time. A few incidents that the courses of action, that basically will demonize the US universities, I would say. There are certain points I would like to highlight. Salem witch trial. It was a misogynist approach and stoning culture. You must have heard about stoning culture that happened in Taliban rule. But unfortunately, the stoning culture to the women was done during their reign, I would say, or during when they were powerful enough to do so in the United States. Another incident was World War II. It was Bharat Sharma sir has highlighted Deadliest Manhattan Project. So this Deadliest Manhattan Project, who we have heard about Oppenheimer. He was a scientist, but who were those that made that deadliest bomb possible? It was 6,000 U.S. scientists, those who were involved in the project that killed lakhs of people in Hiroshima and Nagasaki, Japan, during the World War II. Another incident that happened post World War was the emergence of Cold War. We have our two distinguished guests over here from Russia. I would somebody forgot to mention you guys over there. That's why I have just mentioned over here.
So it was the Cold War era when it started post 1952 or 1947. That is the after the World War II. So the Cold War era and the inception of Davis Center. What is this Davis Center? The Davis Center is a center which was particularly established to create a perception warfare against Russia. Another point is the awards, grants, and fellowships and other kinds of acknowledgement that is being given to anti-India and anti-Bharat actors, and they are given basically they are being given such kind of support to use to help them run their propaganda without sitting in India. The second part of the book, which I would just like to comment upon. I would like to comment on second part of the book, that is the nexus of think tanks, foundations, and academia, who are basically the tools of who shape the public discourse, who tries to shape the public discourse, but sometimes it doesn't happen. But yes, it is an attempt to recolonize Bharat through various institutions or the propaganda tool. It is utilizing the engineered fault lines such as caste, Kashmir, minority, and press freedom. The book also explores the participation of journalists, intellectuals, activists, politicians, and other actors from India's left-leaning media and other kind of institutions who peddle such kind of perception warfare. Last but not the least, I would just highlight the name of the individual who has been involved in who basically has been involved for a long period of time. But recently, a kind of caste-based caste discrimination bill was passed in the not it was basically passed, but it was tried by various forces to make it a law, but it did not basically. Ended up so. So the lady was Tenmori Sundarajan. She's the founder of Equality Labs, being the daughter of a Christian mother and raised in the United States. She alleges caste discrimination in the United States without giving a single evidence till now. Being the founder of the Equality Labs, she has been actively spreading false information in the United States. The methodology and the survey that she had done being part of the Equality Labs in 2016 was already cautioned, and it was basically scrutinized by various tech giants based in the United States like IBM and Cisco. There's another point that I would just highlight. The lawsuit basically it was filed in 2020 against two seniors of the Cisco in order to corner India and Hindus using the caste as a tool. So this day not only marks the successful culmination of my efforts, that is celebration of the collective support, encouragement. With this academic pursuit, I propose to bring forth the argument that the Puritan movement, US University and anti-Bharat approach would bring some kind of insights among academia, among intellectuals, and other journalists. With motivation, I look forward to your esteemed insights on the book and leave you all to think beyond. Thank you. I now request Shri Arun Anandji to kindly address the audience. नमस्कार, माननीय अनंत कुमार जी और मंच पर आज के इस पूरी जो संध्या है उसके नायक जो है राहुल जी, जिन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। पुस्तक के प्रकाशक मालती प्रकाशन के माध्यम से इस पुस्तक को प्रकाशित करने वाले भरत शर्मा जी, और सभागार में मौजूद सभी जो अपने मित्र हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं। मैं 2-3 चीज़ें जो है वो बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में आपसे बात करूंगा। देखिए, किताब तो हो गई है, पर 2-3 संकट हैं जो है। मैं आई विल लीव दीज थिंग्स जो है, मेरे पास उन चीज़ों के जवाब नहीं है, तो मुझे लगता है कि मंच से मैं आप लोगों के बीच में इन बातों को छोड़कर जाना चाहता हूँ
कि मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी कोशिश करें और इन बातों का जवाब मिलना ज़रूरी है। अन्यथा जिस उद्देश्य को लेकर ऐसी पुस्तकें लिखी जाती हैं और ये पुस्तक लिखी गई है, वो उद्देश्य पूरा हो नहीं पाएगा। पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि ये पुस्तक जो है क्यों महत्वपूर्ण है और यूएस की यूनिवर्सिटीज़ का भारत की जो आप अंदरूनी राजनीति भी कहते हैं या जो भारत में डे टू डे फंक्शनिंग हमारे इंस्टीट्यूशंस की है और ख़ास तौर से जिस इंस्टीट्यूशन में आज हम बात कर रहे हैं वो कैसे लिंक्ड है। देखिए 2001 में एक सज्जन है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जिनका नाम था शेल्डन पोलॉक। शेल्डन पोलॉक को दुनिया भर में संस्कृत की सबसे बड़ी अथॉरिटीज़ में से एक माना जाता है। शेल्डन पोलॉक ने 2001 में एक पेपर लिखा, द डेथ ऑफ संस्कृत। उनका ये मानना था कि संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। ये शेल्डन पोलॉक जो संस्कृत के एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं। और उस पेपर में उन्होंने एक प्राइम रीज़न इसका एक दिया है, कारण ये दिया कि चूंकि संस्कृत जो है वो हिंदुत्व के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट हो गई है, दैट इज़ वाई संस्कृत इज़ अ डेड लैंग्वेज। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करिए और 2015 की घटना का राहुल जी ने जिक्र किया यहाँ पर, तो उसमें जो लोग थे, कन्हैया कुमार, उमर खालिद और जो भी लोग थे जो है जिनके नाम जिनके खिलाफ मामले भी दर्ज हुए, शेल्डन पोलॉक जो है उनकी सपोर्ट के अंदर जो है एक बयान जारी करते हैं। और शेल्डन पोलॉक उस समय क्या कर रहे हैं? शेल्डन पोलॉक उस समय कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नहीं है। शेल्डन पोलॉक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो नारायण मूर्ति के बेटे रोहन मूर्ति चला रहे हैं, जिसका नाम मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी है, जो संस्कृत के भारत में संस्कृत के जो सिलेक्टिव टेक्स्ट्स हैं उनको जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ पब्लिश करेगी। और उसको पब्लिश कौन कर रहा है? जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। और उसके एडिटर कौन है जो है पूरे प्रोजेक्ट के? वो है शेल्डन पोलॉक। तो ये एक दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज जो है विच विल टेल यू, और इसके लिए कोई बहुत इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। गूगल पे आपको जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा अगर पीछे वो जाएंगे तो सो कॉल्ड सेकुलर या लिबरल, तो उसकी आड़ में आप ये देखते हैं दे आर बेसिकली, मैं तो मानता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स इज बेसिकली कॉन्ग्लोमेरेट ऑफ माफियाज, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई सिविलाइजेशनल इतिहास नहीं है। जिन लोगों का वहाँ सिविलाइजेशनल इतिहास था उन लोगों को वहाँ समाप्त कर दिया गया। पश्चिम में सभी जगह यही हुआ। जिनका भी सिविलाइजेशनल इतिहास था, जो स्थानीय लोग थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनकी ज़मीनों को टेक ओवर कर लिया गया और एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए एक भूभाग को एक देश का नाम दे दिया गया। दैट इज़ व्हाट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़। और वही वो लोग कर भी रहे हैं। और आप सब लोग जो है खूब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं और आप जानते हैं कि इस पूरी दुनिया को कुल मिलाकर एक 50 लोगों का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलाता है, जिसको ऐसी कोई गलतफहमी है जो है कि ज़्यादातर जगहों पर जो चुनाव हो रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, तो ये दुनिया भर में ये 50 लोगों का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही जो है वो सारी चीज़ें करवा रहा है। इसको आप थोड़ा सा, जैसे इसके जो मैनिफेस्टेशन है, वैनगार्ड जैसी कंपनियां हैं या ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां हैं, जिनकी जो वर्थ है वो या जो है वो यूरोप और यूएस के कंबाइंड जीडीपी से ज़्यादा है। तो ये इस गलतफहमी में मत रहिए। लेकिन इस पुस्तक का महत्व इस दृष्टि से ज़्यादा है कि भारत के खिलाफ यूएस यूनिवर्सिटीज़ में क्यों एजेंडा चल रहा है। बिकॉज भारत इस 50 लोगों के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को चैलेंज कर रहा है और ये चैलेंज हुआ है 2014 में आने के बाद। सो दिस इज द प्रॉब्लम। और इस वजह से यूएस यूनिवर्सिटी से लगातार प्रोपेगेंडा मटेरियल चलाया जा रहा है। तो ये तो हो गई बात जो है थोड़ा सा विषय से जो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अब मैं बस इतना कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। देखिए, एक चैलेंज है एकेडमिशियंस के सामने भारत में। आप सभी लोग जो है वो जेएनयू में एकेडमिक्स के लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप उनको चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन आपको जो एकेडमिक रिकॉग्निशन है वो वेस्ट का इतना ज़्यादा हेजेमनी है उसके ऊपर कि आप जब तक उसकी टर्मिनोलॉजी में बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसके बनाए हुए पैरामीटर्स पर पीएचडी नहीं करेंगे,
तो वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। जब वो आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो व्यवहारिक बात यह है कि आपका एकेडमिक करियर जो है इट विल बी स्टॉल्ड, क्योंकि यहाँ तो सारी जो रिक्रूटमेंट होती है एकेडमिक्स में वो सारी की सारी तो वेस्टर्न पैरामीटर्स पे होती है कि आपको इतने रिसर्च पेपर इस तरीके के जर्नल्स में आपके छपे होने चाहिए, तो वो रिसर्च की मेथडोलॉजी तो आप वेस्ट की ही अडॉप्ट कर रहे हैं। सो द चैलेंज इज कि आप उनके हथियार, जो उनका एम्युनिशन है, जो उनका हथियार है, उनके खिलाफ आप लड़ रहे हैं, लेकिन आपको यूज वही हथियार करने पड़ रहे हैं। तो ये कहना बड़ा आसान है मंच से कि एकेडमिक्स के लोगों को इसको चुनौती देनी चाहिए, बट यू नो फॉर अ हंगरी मैन यूटोपिया इज अ वर्ल्ड फुल ऑफ फूड, अल्टीमेटली लाइवलीहुड मैटर्स। So how do you do it? How do you find the balance? I don't know. I've been struggling with this question कि रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है भारत के संदर्भ में, भारतीय जो है परिस्थितियों के हिसाब से शुरू तो हुई है, पर जो हमारा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है पूरा यूनिवर्सिटी एजुकेशन का, तो वो तो पूरे का पूरा जो है वो आप वेस्ट बेस्ड कह लीजिए या यूएस बेस्ड कह लीजिए, तो ये एक चैलेंज है। इसको आप कैसे मीट करेंगे ये आपको देखना है। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, बट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। और नई टर्मिनोलॉजी आपको गढ़ने की ज़रूरत है। उस टर्मिनोलॉजी को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे एक्सेप्टेंस मिलेगी, क्या हम पैरेलल एक नेटवर्क खड़ा करेंगे, तो ये भी एक जो है क्या उसकी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है। उस पैरेलल नेटवर्क को खड़ा करने के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, जो लोग उस पैरेलल नेटवर्क को खड़ा करने के लिए लगेंगे, अपना जो है करियर दाव पे लगाएंगे, हाउ वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ देम, दीज आर सम वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो जब तक आप इस चीज़ की नहीं करेंगे जो है, until and unless you take care of this thing or we take care of this thing, I don't think we might win the battles, but it will not be easy to win the war. और एक चीज़ और बस कहना चाहता हूँ, देखिए दो चीज़ें जो है बैटल ऑफ नैरेटिव्स में, दो चीज़ें होती हैं, एक है नैरेटिव और एक है काउंटर नैरेटिव। तो मुझे राहुल जी की किताब इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें नैरेटिव, इसमें प्राइमरली काउंटर नैरेटिव है, बट इसमें नैरेटिव बिल्ड करने के सीड्स भी हैं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि उनकी जो अगली पुस्तक है या यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई लिखे, दिस इज एक बहुत अच्छा काउंटर नैरेटिव है, सीड्स ऑफ नैरेटिव है, नाउ दीज सीड्स शुड ब्लूम, और हमें अपना नैरेटिव तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम काउंटर नैरेटिव में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। ये गलत है, वो गलत है, इसने ये कर दिया, उसने बर्बाद कर दिया, वो तो ठीक है भाई, पर तुम्हारा नैरेटिव क्या है, तुम क्या करोगे? सो दैट नैरेटिव बेसिकली वी हैव टू बिल्ड। उसके लिए यू नीड आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी, उसके लिए यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। सो आई होप वी हैव कम अ लॉन्ग वे, जो है बहुत दूर तक आ गए हैं कि आज इस सभागार में इस तरीके का कार्यक्रम हो रहा है, ऐसी पुस्तक लिखी जा रही है, और ऐसे गणमान्य लोग यहाँ पर हैं जो राष्ट्रीय विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सो आई थिंक वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बट वी स्टिल हैव माइल्स टू गो। थैंक यू। Thank you, sir. Now I request the chief guest, Shri Nand Kumar ji, to kindly deliver his address. Please give him a huge round of applause, everyone. आदरणीय भरत शर्मा जी, आदरणीय अरुण आनंद जी, और आज के इस पूरा कार्यक्रम के जो पहले अरुण जी ने जो बताया उस प्रकार से कार्यक्रम का नायक कहना है क्या, मैं पहले जो वहाँ बैठकर विचार कर रहा था उस समय मैंने बताया डोंट डिस्टर्ब हिम, ही इज़ द ग्रूम, ऐसा मैंने बताया था। सो आज के कार्यक्रम में एनीवे अभी आए हुए मान्य ब्रजेश जी, हितेश शंकर जी और बहुत सारे फैकल्टीज आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं। वो पहले भरत शर्मा जी ने जो बताया था, ऐसा है तो विचार करने वाले भाषा में बताने हैं तो मैं मलयालम में बात करना पड़ेगा। माई मदर टंग इज मलयालम। Naturally, like any person,
other than Shashi Tharoor. All of us are thinking in our own mother language, which is in our DNA. So it is very difficult for me to use both the languages, Hindi as well as English. Anyway, I will try to mix it up, and you will be in confusion also. मुझे सबसे अच्छा लगा पहले पेज में राहुल तिवारी जी ने संस्कृत में भगवत गीता के 47th श्लोका ऑफ second chapter Karma Yoga is included. He has clearly mentioned what he is going to do and what he has done. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana ma karma phala heturvhu ma te kam. ऐसा करके उन्होंने लिखा है. He has written. So he has done it well. That's the main thing. Those who are following these type of concept and philosophy, doing the process is मुख्य, main. रिजल्ट के बारे में ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है. But that doesn't mean that he can be idle. He has to work also. That is the third and fourth line shows that you have to work. You haven't got any right to keep idle. You have to work. So he has done it. So from that particular Samarpan, in the first page itself, he has defined his purpose and also asked us to be with him or follow him, just like Arunji has mentioned, that there are enough seeds to conduct research, conduct studies, to prepare so many such works. So I would like to congratulate Rahul Tiwari ji at the outset of my speech to work or wrote such a wonderful book, and hitherto none touched such a subject. That's as per my knowledge, and has given such a title, The Puritan Movement, US Universities and their Anti-Bharat Approach. So, an ordinary reader may shock while reading that particular title itself. So, I would like to congratulate him to give that title. Whether he has given that title or our publisher has given that title, I don't know whether it. But that's a wonderful title itself, Puritan Movement. This is a fascinating exploration, as Maitra has written it in the introduction. It's a fascinating exploration. Main thing which I would like to say is how epistemology is used to cover up intent and how frequently diametrically opposite ideologies merge to become indistinguishable in its aim and methods. That's the main attraction or main fascinating moment which I have gone through it, just like Maitra wrote it in his introduction. This is the main thing. So when we are talking about Puritan movement, we may think that it's about the Protestant movement of the Christianity alone. No. When you go through the pages, you'll find out that there are some strange bedfellows, bed partners come together and work against this great Sanatana Dharma and Rashtra. Who are they? We are discussing it in JNU. You may be knowing how these type of partners are coming together, the Protestant or Puritan, whatever may be the term. But so many anti-Bharat, anti-Sanatana forces are coming together to destroy, to divide Bharat. So very beautifully, he has explained about all of them. The so-called leftists, so-called liberals, so-called seculars. Pronunciation गलत नहीं हुआ था, मैं purposefully seculars बताया था. They are sick. They are very much. कुछ लोग देखते हैं क्योंकि अंग्रेजी के अध्यापक भी बैठे हैं. ये कौन सा pronunciation है भैया ऐसा करके. Purposefully said. And Islamic fundamentalists. They are all very much, I know, opposite forces in some cases. But they came together.
So many examples are there. I don't want to explain through that. You can go through the book and you will find out that he has made it wonderfully. And another, why I congratulated him for giving such a title, Puritan. That term matters. Because in the epistemology or in the Vijnana, Jnana Samiksha or Jnana Mimamsa, Shabda Mahatvapurna hai. Once Mahatma Gandhiji and Nehru engaged in a strong discussion and also somewhat debating each other about the meaning of a particular term, that is socialism. We are thinking that socialism is very much understandable and very much forward. ऐसा हम लोगों को लगता है, लेकिन गांधी जी को बिल्कुल नहीं लगा. इसके अर्थ के बारे में उनको बहुत सारे शक थे गांधी जी को. इसलिए नेहरू जी एंड गांधी जी वर डिस्प्यूटिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशलिज्म. जो सोशलिज्म सुनते ही हमको मालूम है सोशलिज्म उपयोग किया है तो वो पॉलिटिकली करेक्ट है, पॉलिटिकली वेरी करेक्ट है. सोशलिज्म उपयोग नहीं किया है तो इज पॉलिटिकली इनकरेक्ट है. ऐसा एक perception has been created through this usage of this term. Gandhiji was a grand narrator. I don't know who all are came here to hear me. Many of you may not join with me, agree with me, but I do consider Gandhiji as the master narrator ever Bharat has seen. Such a great narrator. So he was not ready to approve Nehruji's this very much obsession about this socialism. See, this was in 1934. You may be knowing, in the early 30s, in the 30s, Gandhiji and Nehruji were in loggerheads. Actually, they were fighting about the leftist ideology, which is very much inside in Nehruji. Nehruji was an undeclared member of Communist Party, I would like to say. Many of you, and again, Arunji, when you शेल्डन सर के बारे में बताने के समय जस्ट थोड़ा रिवाइंड करो पीछे. Who told first of all Sanskrit is a dead language? Whether it was Sheldon or Nehruji. When the language policy was discussed in Bharat's main language committee, he announced that Sanskrit is a dead language. He announced so many things. Sorry, I am standing here in a university in his name. Okay. He said that Sanskrit is a dead language. He said that this nation is not a nation. I am trying to make it. That's why he announced publicly. See the audacity of that great person to announce that we are a nation in making. Astyuttaram dishi devatatma himalayam nama nagadhiraja purvaparotoya nidhivagahya sthita prithivya iva manadanda. इस प्रकार हिमालय के बारे में उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षं तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति. कितने साल पहले विष्णु पुराण में लिखा है. समुद्र पर्यंता एक राड कब लिखा है वेदों में. फिर भी एक प्रधानमंत्री पहली बार प्रधानमंत्री बनकर अनाउंस किया वी आर अ नेशन इन मेकिंग. And he announced when the language policy was discussed, he said that this particular language is a dead language. What was the situation then? None other than Baba Sahib Ambedkar was arguing for Sanskrit. Arguing for Sanskrit. Sanskrit के बिना भारत को आगे नहीं बढ़ सकते हैं. If you want to open the khajana of our knowledge tradition, you must have the key of Sanskrit. Sanskrit is not just a language. It is a subject as well. And also the key to open the great treasure of our Bharatiya knowledge system. So such a language has been announced that it is dead. Poor Sheldon has repeated it only, sir. Okay. Anyway, they were disputing. We are talking about term. Gandhiji ko Nehru ne letter likha. I was just going through that. In August 13, 1934. You may be knowing that first decade, the beginning of the 30s, they were, huge gap was there, ideological gap was there between Gandhiji and Nehru. Those who have gone through it historically, you may be knowing that fact. In 1934 only he has announced publicly that only one philosophy or ideology, political ideology is progressive, that is communism. Only one bloc of nations are improving and progressing, that is Russian bloc.
ये सब बताने वाला व्यक्ति है, that too in his AICC presidential address, Lucknow AICC presidential address. Along with that, he has made a discussion, and Gandhiji was not with his what you say इस प्रकार के उनके कंक्लूजन पर. इसलिए नेहरू जी ने लेटर में लिखा, कोट, सोशलिज्म हैज क्लियरली डिफाइंड द मीनिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज. आपको इंग्लिश के ज्यादा जानकारी नहीं होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूं, इंग्लिश लैंग्वेज में सोशलिज्म इज क्लियरली डिफाइंड. Mahatma ji replied, see that sarcastical reply. He said, quote, I have looked up the dictionary meaning of socialism. It takes me no further than where I was before I read the definition. मेरे को किसी एक इंच में आगे नहीं जा सकते हैं. इसलिए कृपा करके जवाहर, what will you have to me to read to know its full contents? सोशलिज्म के पूरा कंटेंट सिखाने के लिए और कुछ सजेस्ट करना है तो इन्होंने कितना डिक्शनरी सजेस्ट किया, पूरा गांधी जी ने पढ़ा, फिर गांधी जी ने बताया. ये पढ़ने के पहले मैं कहां था वहां मैं अभी भी है. मेरा पूरा कंक्लूजन वही है, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. हमारे इस समाज को आगे बढ़ाने में हेल्प नहीं करते हैं. बट स्टिल यू नो, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, सोशलिज्म कहा है तो स्पीच के बीच में कुछ सोशलिज्म को भी मिक्स किया है तो तुरंत लोग कहेंगे यस इट इज पॉलिटिकली करेक्ट स्पीच. बहुत अच्छा बताया, क्यों सोशलिज्म बताया है. ये गलतफहमी अपने कुछ लोगों को भी बीच के कालखंड में आ गया, इसलिए उन्होंने बनाया एक नया थियरी, गांधीयन सोशलिज्म. गांधीयन सोशलिज्म, इट इज जस्ट एन ऑक्सीमोरॉन. गांधी को सोशलिज्म नहीं, सोशलिज्म है तो गांधी हो नहीं सकते हैं. Gandhian socialism, it's an oxymoron. Anyway, so term matters. When we are hearing Puritan, it is Puritanism. Hindu Dharma, Bharatiyas also stood for Puritan कर्मों के बारे में, सुचिता के बारे में. धर्म के अंदर धर्म को 4 पिलर्स बताते हैं. Especially Dr. Mohan Bhagwat used to define dharma is in this way. There are 4 pillars for dharma. One is satyam, दूसरा शुचित्व, तीसरा करुणा, चौथा तपस. इसमें शुचिता यानी एक प्रकार से प्यूरिटन मूवमेंट है, प्यूरिफाई करने का मूवमेंट है ना, ऐसा लगेगा. इस प्रकार का एक परसेप्शन क्रिएट किया है थ्रू यूसेज ऑफ, जो रिपीटेड यूसेज ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म. इसलिए हमारे मन में भी लगेगा ये प्यूरिटन मूवमेंट है तो फिर यूएस यूनिवर्सिटी इसको क्यों अपनाया है. दैट्स वे आपके अट्रैक्शन, आपके इंटेलिजेंटली पुस्तक पढ़, आप लोग सब इंटेलिजेंटली पुस्तक पढ़ने वाले लोग ही है, मैं ऐसा मेरे मन में शक नहीं है, लेकिन ये बहुत अट्रैक्टिव होगा ऐसा मुझे लगता है. मैं पुस्तक पूरा नहीं पढ़ा है, समय नहीं मिला, आज सुबह ही आया, सुबह ही पुस्तक मेरे पास में आया है, फिर भी थोड़ा पढ़ने से मेरे को ये बात मिला है. सो यूसेज ऑफ दीज टाइप ऑफ टर्म्स दैट वाज एंटर्ड इनटू आवर एकेडमिक पार्लेंस. अनफॉर्चुनेटली हमारे एकेडमिक पार्लेंस में भी ये प्रवेश किया है. आई थिंक रोहित जी इज फ्रॉम हरियाणा साइड है ना? क्या राहुल जी? नहीं, हरियाणा से कोई है तो एक बहुत फेमस एक फोक टेल है इसमें. वो फोक टेल, एक जाट वाज मूविंग बिफोर, एक तेली के घर के सामने चल रहे थे. जाट वाज होल्डिंग ए घाट ऑन हिज हेड. सडनली दिस तेली एक कवि भी है, वो कवि वहां बैठकर एक अच्छा कविता, राइमिंग कविता लाइंस बनाकर बताया, जाट रे जाट तेरे सर पर खाट, ऐसा बताया, तेरे सर पर खाट ऐसा. लेकिन ये जाट भी कुछ पीछे नहीं थे, he also knows how to somewhat राइट करना, यानी बताना. उन्होंने तुरंत इसका उत्तर दिया, तेली रे तेली तेरे सिर पर कोलू, ऐसा बताया. तुरंत. ये जाट बहुत प्यूरिटन कवि थे, इसलिए उन्होंने इसका उत्तर दिया. देखिए आपके जो लाइन्स है ना, इट इज नॉट राइमिंग, इट इज नॉट राइमिंग, बिकॉज मेरे कविता में क्या जाट जाट खाट ऐसा शब्द ये है, आपके इसमें तेली तेली कोलू ऐसा आ गया है. और कोहली है तो नहीं, विराट कोहली नहीं है, कोहली है तो ये राइम करने वाला था. लेकिन इसका उत्तर जाट ने दिया, वो सही में आज के दी सो कॉल्ड नैरेटिव बिल्डर्स बनाते हैं, उनका जो उत्तर ऐसा है, हेल विथ योर राइम एंड रीजन,
But one thing is for sure, you are going to be crushed under the weight of that kulu. That's going to happen. In this way, whatever it may, using these type of terms, and these guys are trying to crush us. इसको समझना, समझकर उत्तर देना, काउंटर भी जरूरत है, पॉजिटिव क्रिएटिव नैरेटिव भी खड़ा करना ये भी जरूरत है, काउंटर भी जरूरत है. उस प्रकार का एक काउंटर नैरेटिव इन्होंने जो बनाया है. और इस पुस्तक में जो शुरू से लेकर भरत जी के स्पीच से और थोड़ा बहुत राहुल जी जो बताया था, इससे हमको लगेगा, अरुणानंद जी भी एक्सप्लेन किया, उसमें से आपको लगेगा इट इज समवट अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी और प्रोटेस्टेंट रिलीजियस बिलीफ और प्यूरिटानिज्म एंड ऑल. आई डोंट थिंक सो. वी आर नेवर अगेंस्ट एनी रिलीजियस बिलीफ. रिलीजियस बिलीफ के खिलाफ हो नहीं सकते हैं, क्योंकि व्हाट इज आवर बिलीफ? भारत का एकम सद विप्राह बहुधा वतन्ति. वन इज ट्रूथ, अल्टीमेट ट्रूथ इज वन, and to reach that particular truth there are so many ways, and the intelligent peoples, they have suggested so many ways. All the ways are correct. We never said that, we never raised the voice against any of the ways. सब ways ठीक है. इसलिए स्वामी विवेकानंद when he was there in Chicago, he said that we are not at all following mere tolerance. Tolerance is a negative term actually, is it not? Okay, इतना 3 स्पीच हो गया है. ये बंदा पहले समाप्त कर दिया है तो हमको उठकर जा सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ हुआ है तो क्या हो जाएगा. इसलिए आप लोग टॉलरेट कर रहा हो मेरे को. मेन जो बता रहे, यू आर नॉट जस्ट ओबेइंग और अंडरस्टैंडिंग और फॉलोइंग मी. ऑल ऑफ यू आर नॉट लाइक दैट, बट क्योंकि सो यू आर in a way, tolerance is a negative term. As far as Bharatiya epistemology is concerned, tolerance is not the ultimate idea. What is the ultimate idea? That is sarva dharma samabhavana, universal acceptance. We are ready to accept any religious beliefs. But one thing we are against, damn against. When you are saying hatred is your way of religious work, hatred hai, ऐसा कहा है तो we are against that, because our firm belief is मा विद्वेषाव है. We are not against anyone. Hatred हमारे यहाँ नहीं है. एक बार एक पत्रकार ने कॉमरेड स्टालिन को पूछा, व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर आइडियोलॉजी? उन्होंने उत्तर दिया, अनकंडीशनल हेट्रेड, दैट इज माय अल्टीमेट हेट्रेड टुवर्ड्स capitalist, towards so-called people. That is his belief system. At the same time, another journalist interviewed Professor Madhava Sadashiva Golwalkar alias Guruji Golwalkar. उनको पूछा, आपका काम का बेस क्या है? Unconditional love. That is my base. That is our organizational base. Unconditional love. इसलिए हम कहते हैं मां विद्वेषाव है. ऐसा विचार रखने वाले व्यक्ति को, या ऐसा व्यक्ति है राहुल तिवारी जी, इसलिए उनको इस पुस्तक के द्वारा किसी रिलीजन के खिलाफ लिखा ऐसा नहीं है. Why he is against that? They are based upon hatred, विरोध, घृणा, इसके आधार पर वो काम करते हैं. इसलिए इसको कुछ न कुछ ओपन करना, एक्सपोज करने की जरूरत है. इस समय मेरे मन में ऐसा बैठे बैठे एक 4 पंक्ति एडविन मार्कम के 4 पंक्ति याद में आ गया. एडविन मार्कम बहुत बड़ा कवि है, आप लोगों को मालूम है, मैं बताने की जरूरत है. उन्होंने एक बार ये लव और हेट्रेड के बीच का डिफरेंस बताने के लिए 4 लाइन लिखा. इट वाज जस्ट लाइक दिस. ही ड्रू ए सर्कल एंड शट मी आउट. ही ड्रू ए सर्कल एंड शट मी आउट. हेरेटिक, रेबल, समथिंग टू फ्लाउट. मेरे को बाहर कर दिया. Rahul ji has also somewhat touched that topic also. The main sole purpose was evangelization. Evangelization. इसके लिए ही आए हैं. अदरवाइज वास्को ड गामा के जहाज के अंदर उन्होंने क्यों पादरियों को लेकर आए हैं? मैं हर बार पूछते हैं, सामान्यतः इस प्रकार के मीटिंग में भी पूछते हैं, क्या आप लोग ट्रेड के लिए, यानी पालक खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं सुबह सुबह ट्रेड के लिए, जाने के समय क्या आप पास में मंदिर के पुजारी को साथ में लेकर जाते हैं क्या, कौन सा पालक खरीदना है, ऐसा पूछने के लिए? नेवर. बट दिस गाइस गेम हियर पोर्टुगल, कहो कोई भी हो ब्रिटेन तक,
साथ में उन्होंने पर्याप्त संख्या में क्लर्जी एंड ऑल पास्टर्स को लेकर आए हैं. Why it has happened? Before coming here, Portugal and Spain were directed by none other than Marpapa, asked one to go east and asked another to go west, as if it was his hereditary property. ये पृथ्वी उनके हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है वो समझकर पूरे विश्व को दो कर दिया. What else was the Tordesillas Treaty? What else was it? मारपापा के अध्यक्षता में टॉर्डिसिलस शहर के अंदर ये दोनों ताकतों को एक साथ बिठा के क्या चर्चा किया था? आप क्यों आपस में लड़ते हैं? देखिए ये पृथ्वी पूरा फ्लैट है. एक वेस्ट में जाओ, स्पेन को बताया वेस्ट में जाओ, पुर्तगाल को बताया ईस्ट में जाओ, वो इधर आए हैं. I am not confining myself with the so-called Puritan movement which was started and ended in the 17th century beginning. वो मैं उतना बात नहीं है, इसके पहले ये शुरू किया था. इसको और जोर दिया है इन लोगों ने बात में. इसको समझने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है. और another important matter that has been very well suggested in the last chapter, I think, by Rahul ji, the author, that we have to be very careful about this new mechanization which has been made by this foreign university. They are entering into Bharat with the official sanctioning, official formal sanctioning के साथ UGC के support के आधार पर they are coming. Maybe UGC is that confident about that. If they are coming here, nothing is going to happen to us. But sorry to say, what all are happening in the premier so-called educational institutions already influenced by these Western philosophies. Already. 3 days before, in one of the premier universities in Delhi, there was a program. And in that program, one gentle boy from Kerala, a comrade, he has announced that it is necessary to fight out this Hindu fascism. We have to destroy the construction which was made illegally in Ayodhya. So for that purpose, you have to march towards Ayodhya, resurrect, reconstruct that structure which was the original structure there. It has been announced publicly. So we have to be very careful, especially these type of intelligentsia who are hearing me. You have to be very careful about that. Once they are entering, not इसके मतलब डरने की कोई कारण नहीं, लेकिन we have to be prepared enough with all strength. So मेरे मन में थोड़ा शक इसलिए है, डाउट इसलिए है. देखिए अपने यहाँ करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, NEP के आधार पर करिकुलम फ्रेमवर्क बना रहे हैं. Sorry to say, I am announcing publicly, मेरे को अगले इलेक्शन में सीट नहीं चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ. I am politically correct भी नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ. In the curriculum framework for the political science students of 8th standard, it has been given in a chapter, bluntly given in the chapter, that social discrimination and social inequalities are starting from families. हमारे परिवार से प्रारंभ होते हैं. जेएनयू के स्टूडेंट्स या टीचर्स को बहुत ज्यादा इसमें क्या है, वो स्वाभाविक है, ऐसा लगेगा थोड़ा सा. लेकिन इन द नेक्स्ट सेंटेंस दैट करिकुलम फ्रेमवर्क बनाए हुए वो वैदेशिक विचारधारा, विदेश विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति ने यह भी लिखा है, वन असाइनमेंट हैज बीन गिवन टू द 11-12 एज बॉयज एंड गर्ल्स को एक असाइनमेंट भी दिया है. यू हैव टू वॉच योर फैमिली, योर फादर, योर मदर, योर अंकल क्लोजली वेदर दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग यू और नॉट. देखिए, this is the way things are progressing. Is it the correct thing? So already these type of things are there to weed out. ये weed out करने के लिए बाकी है अभी भी. इसको weed out करने के पहले ही, if you are opening the gates, so we have to be very careful. So उस समय पर एक चेतावनी के रूप में इस पुस्तक को भी आप देखने की आवश्यकता है. In all these ways, see, when these foreigners came here, especially the Mughals or the Westerners or all came here, they want to destroy our education system. That's why the great universities were destroyed first. Nalanda kaho, Takshashila kaho, and Vikramashila kaho, Vallabhi kaho, Gujarat ke.
These are all explained in this book. I would like to request you all to purchase it. Purchase it. Purchase करके ही पढ़िए. पढ़कर इसका आगे का जो दो सीड्स which you are getting उसके आधार पर और आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर दीजिए. Why this caution has been given, precaution has been given through this book? Because we are passing through such a great moment in the history. Great moment. We have entered into the Amrita Kala. We have to reach that 2047 Lakshya which has been given to us by the most respected Pradhan Mantri to make this great nation परम वैभव विश्व गुरु राष्ट्र बनने की आवश्यकता है. ये विश्व गुरु राष्ट्र अगर बनाना है तो our education system must be clean, clear and a model for the whole world. We shall not run after any of the universities from the विदेशीज. इसकी जरूरत नहीं है. वो लोग यहाँ JNU में पढ़ने के लिए आना चाहिए. यहाँ एक सेंटर बनना चाहिए. ये सब एजुकेशन का सेंटर बनना चाहिए. उस प्रकार से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी इसमें से हमको मिलता है. इतना जो बातें बताकर ये सब बताने के अर्थ तो मैं फिर से I would like to repeat. It is not because of I am frightened. मैं अफ्रेड नहीं हूँ. मैं डरते नहीं हूँ. भारत है, भारत रहेंगे ही, भारत आगे बढ़ेंगे ही. अभी राम का जो युग प्रारंभ हो गया है. Ram has returned after so many years, 496 years past. He has returned to us again to our Simhasana. So we are going to win, just like great Lakshmana Kumara after during the fight with Indrajit, the ultimate fight. Lakshmana Kumara, while he took the last arrow to kill Indrajit, उसमें उन्होंने एक मंत्र कहा था. I used to repeat that mantra. धर्मात्मा सत्य संदश्च रामो दाशरधर्यति पौरुषेचा प्रतिद्वंदस्त शरैनम जहि रावणी. हे आरो, हे शर, ये तीर, उन्होंने मंत्र किसी रामायण क्या है वारुण मंत्र या नारायण मंत्र नहीं जपा. उन्होंने राम मंत्र, तारक मंत्र जपा. वो तारक मंत्र जपकर उन्होंने बताया, हे शर, अगर यानी उनको कोई शक नहीं है, फिर भी उन्होंने बताया, अगर मेरे ज्येष्ठ राम धर्मात्मा है, सत्य संध है, दशरथ पुत्र राम है, तो हे शर जाकर वध करके वापस आइए. किल हिम एंड कम बैक. ऐसा करके उन्होंने भेजा. उस प्रकार हम भी हमारे धनुष में अपना इच्छा शक्ति का शर को लेकर, तीर को लेकर वो मंत्र गाइए. धर्मात्मा सत्य संतश्च रामो दाशरथिर्यति पौरुषेचा शरैनम जहि रावणी. ऐसा करके हम जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं. इसका पूरा विश्वास लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देने वाले ये पुस्तक, और पुस्तक को बेस बना के और सर्च करने के लिए आप लोगों को प्रेरणा मिला है तो सही में ऑथर का उद्देश्य पूरा हो जाएगा. नमस्कार. वंदे मातरम.